سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی کہ محمد بن قاسم کے تمام گھوڑے کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے ہیں اور مرنے بھی لگے ہیں تو وہ پریشانی سے نڈال ہو گیا، لیکن حوصلے والا آدمی تھا، اتنا بڑا صدمہ برداشت کر گیا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ بصرہ میں فوج کے جتنے بھی گھوڑے ہیں فوراً حاضر کیے جائیں۔ تھوڑی سی دیر میں 2000 گھوڑے قصر عمارت کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ حجاج نے دوسری کارروائی یہ کی کہ شہر کی تمام مسجدوں کے اماموں کو، علماء اور کئی دیگر متقی افراد کو طلب کیا۔ سندھ میں ہم پر جو آفت نازل ہوتی ہے اس کا علاج صرف دعا ہے، حجاج نے اماموں اور علماء وغیرہ سے کہا۔ سندھ میں اپنے سوار دستوں کے تمام گھوڑے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، گھوڑے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سپاہ سالار کیسی ہولناک مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ وہ دشمن ملک ہے، دشمن اس پر حملہ کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن ضرور حملہ کرے گا۔ اس نوجوان لڑکے اور اس کے لشکر کو صرف دعائیں بچا سکتی ہیں۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، رو، سجدے کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ پھر حجاج نے منوں کے حساب سے روئی اور سرکہ فوراً اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ جوں جوں روئی آتی جا رہی تھی، حجاج کے حکم سے اسے سرکے میں بھگوتے اور دھوپ میں رکھتے جا رہے تھے۔ روئی آتی رہی، سرکہ بھی آتا رہا۔ سرکے میں بھیگی ہوئی روئی خشک ہو جاتی تھی تو اسے پھر سرکے میں بھگو دیتے تھے تاکہ روئی زیادہ سے زیادہ سرکہ اپنے اندر جذب کر لے۔ جب روئی خشک ہو گئی تو اس کی گانٹیں بنا کر 2000 گھوڑوں کے ساتھ سندھ روانہ کر دی گئیں۔ یہ گھوڑے جس آدمی کی ذمہ داری میں بھیجے گئے اس کا نام تیار تھا، وہ گھوڑوں کے امراض کا ماہر تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے نام پیغام بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ گھوڑوں کو اس خطے کی غذا ہضم کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور یہ غذا گھوڑوں کو راس نہیں آئی۔ سرکے میں بھگو کر خشک کی ہوئی روئی بھیجی جا رہی ہے، تھوڑی سی روئی پانی میں ڈال کر نچوڑو گے تو تمہیں سرکہ حاصل ہوگا۔ سرکے والا یہ پانی ہر روز 2-3 مرتبہ گھوڑوں کے منہ میں ڈلواتے رہنا، گھوڑے صحت یاب ہو جائیں گے۔ مسجدوں میں دعائیں مانگی جا رہی تھیں، نوافل پڑھے جا رہے تھے۔ سارے شہر بصرہ میں یہ خبر پھیل گئی، عورتوں گھروں میں دعائیں مانگنے لگیں، گھر گھر وظیفے پڑھے جانے لگے۔ خلیفہ وقت کو بھی محمد بن قاسم کو درپیش صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ خلیفہ عبد الملک ہر جمعے کے خطبے میں لوگوں کو محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کی نجات اور کامیابی کی دعا کے لیے کہنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لیں۔ 2000 تازہ دم گھوڑے بروقت پہنچ گئے، ورنہ خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ حجاج کے بھیجے ہوئے گھوڑوں سے پہلے داہر کے گھوڑے آ جائیں گے جن پر مسلح سوار ہوں گے۔ 2000 گھوڑوں کے ساتھ بیمار گھوڑوں کا علاج بھی پہنچ گیا۔ سرکے نے بہت سے بیمار گھوڑوں کو بچا لیا۔ محمد بن قاسم نے اس مقام پر قیام ضرورت سے زیادہ لمبا کر دیا۔ حجاج اس کے اس پیغام کا منتظر رہا کہ دریا عبور کر لیا گیا ہے اور داہر کی فوج کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا۔ حجاج کو اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم بلا وجہ وہاں رکا ہوا ہے۔ حجاج کو یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ سیسم پر ایک ہندو حاکم نے دھوکے سے قبضہ کر لیا تھا اور اس سے قبضہ چھڑوا لیا گیا ہے۔ حجاج اس اطلاع پر بہت برہم ہوا کہ سیسم میں صرف سرگنوں کو سزائے موت دی گئی ہے اور جو ہندو فوجی دھوکے سے قلعے میں داخل ہوئے تھے اور جن ہندوؤں نے انہیں اپنے گھروں میں چھپایا تھا ان سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حجاج نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر محمد بن قاسم کو تحریری پیغام بھیجا جو تاریخوں میں محفوظ ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم ابھی تک وہیں ہو اور ابھی تک دریا عبور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا تم دشمن پر رحم کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارا یہ رویہ پسند نہیں کہ دشمن کو امان دینے اور جان بخشی کرتے رہو۔ عداوت پیدا ہو جائے تو امان نہیں دینی چاہیے۔ تم گنہگار اور بے گناہ کو یکساں سمجھتے ہو۔ دشمن کہے گا کہ یہ تمہاری کمزوری ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ خدائے ذوالجلال نے تمہیں ایسی عقل سے نوازا ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی؟ تم اس عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اور تم وہاں بیکار بیٹھے دشمن کو مزید تیاری کا موقع دے رہے ہو؟ تمہارے مشیر کیا کر رہے ہیں؟ میرا یہ پیغام انہیں بھی سنا دینا۔
जंग में दुश्मन को धोखा दिया जाता है, जाहिर कुछ और करके किया कुछ और जाता है। तुम वक्त ज़ाया करते रहोगे तो जंग के एहराजात बढ़ते जाएंगे। हुकूमत और हिकमत अमली की तरफ तवज्जो दो। लश्कर की जुर्रतमंदी और बेखौफी को नजरअंदाज न करना। लश्करियों के हौसले दूर अंदेशी और ज़रफ की कुशादगी से मजबूत करो। रासत गो रहो, रासत गो का एहतराम करो, साबित कदम रहो और जिक्र इलाही और इबादत दिलो जान से अदा करो। मुझे यहाँ बैठे दरियाए मेहरान यानी दरियाए सिंध नजर आ रहा है। दरियाए बेट के करीब से अबूर करना, क्योंकि वहाँ दरिया तंग है, पानी गहरा और तेज है, लेकिन वहीं से पार जाना आसान होगा। कश्तियों का पुल बना लेना, मुकामी लोगों को इस्तेमाल करना, वो तुम्हें कश्तियाँ इकट्ठी कर देंगे। असल मदद तो अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह को अपने साथ समझना। जब तुम बेखौफ होकर दरिया अबूर करोगे और हौसले से दुश्मन को ललकारोगे तो वहाँ के लोगों पर तुम्हारा रौब बैठ जाएगा और वो दिलो जान से तुम्हारी अतात कबूल करेंगे। इस पैगाम के साथ हिजाज ने खलीफा का हुक्मनामा भेजा था, जिसके तहत मोहम्मद बिन कासिम को सिंध का अमीर गवर्नर मुकर्रर किया गया था। हिजाज ने लिखा था कि उसने खलीफा से ये हुक्मनामा बहुत सी बातें करके हासिल किया है। तुम्हें अब साबित करना है कि तुम इस रुतबे के अहल हो। तुम्हें आज़ादी से हुकूमत करने का इख्तियार दिया जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम अपने हालात को खुद ही बेहतर समझता था। उसने जासूसों को हर तरफ फैला रखा था। अरब के बागी इलाफी इस सिलसिले में उसकी मदद कर रहे थे। दाहिर की फौज दूसरे किनारे पर थी। वो हाथियों की तादाद में इजाफा कर रहा था। हिंदुस्तान से मजीद हाथी आ रहे थे। उसने अपने फौजी हाकिमों सालारों से कहा था कि वो इसी लड़ाई को फैसला कुन बनाएगा और इसी मैदान में मुसलमानों का नामो निशान मिटाकर सिंध को हमेशा के लिए महफूज कर देगा। मोहम्मद बिन कासिम मोहतात होकर आगे बढ़ना चाहता था। हिजाज के पैगाम ने उसे गरमा दिया। वो हिजाज के इन अल्फाज को बर्दाश्त न कर सका कि तुम वहाँ बेकार बैठे हो और वक्त जाया कर रहे हो। मेरा चचा हमें शेर समझता है, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों और मशीरों से कहा। वो हमें कमानों में डालकर छोड़ना चाहता है। तीर में अकल नहीं होती कि दुश्मन को अपने रास्ते से हटा हुआ देखकर अपना रुख उसकी तरफ फेर ले। हमें सोच समझकर चलना है। उसने सालारों को बताना शुरू कर दिया कि पेशकदमी किस तरह करनी है। उसने हस्बे मामूल सालारों और मशीरों से मशवरे तलब किए। कुछ वक्त के बहस मुबासे के बाद दरिया पार करने का मंसूबा तैयार हो गया। सबसे पहले बीट के हाकम दसाइयों के बेटे मोकू को पैगाम भेजा गया कि वो दरिया अबूर करने के लिए कश्तियों, रस्सों और मल्लाहों का इंतजाम करे जो कश्तियों को रस्सों से बांध सकें। मोकू के साथ उन्हीं शराइत पर समझौता हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम को हर वो मदद करेगा जिसकी जरूरत पेश आएगी और मोकू की हाकमियत कायम रहेगी और उसकी राया के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मोहम्मद बिन कासिम की होगी। मोकू पहले ही अपने बाप, भाई और राजा दाहिर के खिलाफ था। उसे मोहम्मद बिन कासिम का पैगाम मिला तो उसने फौरन जवाब दिया। क्या अरब के सलार ये समझते हैं कि हिंदू के राजकुमार अकल के कोरे होते हैं? मोकू ने जवाब दिया, मुझे मालूम था कि तुम लोगों ने दरिया अबूर करना है। कश्तियाँ तैयार हैं, रस्से भी मौजूद हैं और आदमी भी। कश्तियाँ तुम्हें बेट के बिलमुकाबिल दरिया में बंधी हुई मिलेंगी। वहाँ दरिया का पाट तंग है और पानी का बहाव तेज है। खुद आकर देख लो। कासद ने वापस आकर मोहम्मद बिन कासिम को मोकू का जवाब दिया। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो हमारे साथ है। कश्तियाँ उसी जगह हैं जहाँ से हिजाज ने लिखा है कि दरिया अबूर किया जाए। आज ही रात कश्तियों को रस्सों से बांध दिया जाएगा। मोकू को इतला भेज दो कि मैं आज रात वहाँ आऊँगा। रात को मोहम्मद बिन कासिम अपने सलारों के साथ उस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ कश्तियाँ रखी गई थीं। वो अपने साथ ऐसे आदमी ले गया था जो कश्तियों का पुल बांधने का तजुर्बा रखते थे। मोकू बहुत से आदमियों के साथ वहाँ पहले से मौजूद था। बड़े मोटे और मजबूत रस्से भी लाए गए थे। तमाम कश्तियाँ छोटी थीं और इनके किनारे ऊंचे नहीं थे। फतू उल बल्दान और चचनामा में कश्तियों के पुल की जो तफसील दी गई है वो इस तरह है। वहाँ दरिया ज्यादा तंग और इस वजह से पानी गहरा और बहाव ज्यादा तेज था। पाट की तंगी का ये फायदा था कि पुल लंबा नहीं बनाना पड़ता था और नुकसान ये था कि इतने बहाव में जिसमें लहरें भी उठ रही थीं, कश्तियों को संभालना और बांधना बहुत मुश्किल था। आखिर अरबों के दिमाग ने एक तरीका सोच लिया। चंद एक मल्लाहों को एक कश्ती में दूसरे किनारे पर भेज दिया गया। कश्तियों को रस्सों से इस तरह बांधा गया कि दरिया की चौड़ाई का अंदाजा करके देखा गया कि इस किनारे से उस किनारे तक कितनी कश्तियां काफी होंगी। इतनी कश्तियों को खुश्की पर पहलू ब पहलू रख कर उन्हें दोनों तरफ रस्सों से बांध दिया गया। पहली और आखिरी कश्ती से आगे रस्सों को लंबा रखा गया। कश्तियों की इस बंधी हुई कितार को बेशुमार आदमियों ने मिलकर धकेला और दरिया में इस तरह डाल दिया कि कश्तियां किनारे के साथ रहें। इस तरफ से रस्से लंबे रखे गए थे, वो बड़े लंबे और मोटे कीलों के साथ बांध दिए गए। ये कील तकरीबन 1-1 फुट कुतर के थे। उनका ज्यादातर हिस्सा जमीन में गाड़ दिया गया था।
ऐसे 2 कील उन मलाहों के साथ दूसरे किनारे पर भेज दिए गए जो पार चले गए थे। इधर रस्से बांधकर कश्तियों को छोड़ दिया गया। चूंकि इधर वाली पहली कश्ती किनारे के साथ बंधी हुई थी, इसलिए दूसरी कश्तियां दरिया में बहने लगीं। ये घड़ी की सुई की तरह दरिया में इस तरह गईं कि आखिरी कश्ती सामने वाले किनारे के साथ जा लगी। वहां मुल्ला मौजूद थे। उन्होंने उधर वाले रस्से पकड़ लिए और उनके सिरे इधर गाड़े हुए कीलों के साथ बांध दिए। पुल तैयार हो गया। कश्तियों पर तख्ते डाले जाते तो ये पक्का और मजबूत पुल बन जाता, लेकिन तख्तों को कश्तियों पर लोहे के कीलों से पक्का ठोकना था। तख्तों के हसूल और उन्हें कश्तियों पर लगाने के लिए बहुत वक्त दरकार था। इसके अलावा पुल आर्जी बनाना था। इससे गुजरकर कश्तियां खोल देनी थी। इससे गुजरने के लिए एक कश्ती से दूसरी कश्ती में जाना था। कश्तियां छोटी थीं, घोड़ों को गुजारने के लिए वक्त दरकार था। अगले रोज जब सूरज कुछ ऊपर आ गया था, पुल गुजरने के लिए तैयार हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पर सवार हुआ और बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पुल अबूर करने लगा। घोड़ा एक से दूसरी कश्ती में संभल कर कदम रखता गया। दरमियान में लहरें उठ रही थीं, इसलिए कश्तियां ऊपर नीचे होती और डोलती थीं। इससे घोड़ा डरता और बुदकता था। मोहम्मद बिन कासिम ने पीछे देखा, सलारों के घोड़े आ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम को इत्मीनान हो गया कि इसके घोड़े को देखकर दूसरे घोड़े बुदके बगैर चले आ रहे थे। इन घोड़ों ने दरिया पार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े को मोड़ा और कश्तियों से गुजारने लगा। अब घोड़े का डर दूर हो चुका था।